السلام علیکم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں ہلدوانی سے بول رہا ہوں مولائی۔ ہاں ہلدوانی سے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا حافظ ارشاد حسین۔ حافظ ارشاد حسین مولائی؟ جی جی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ فضائل صحابہ کتاب چاہیے تھی مجھے۔ اچھا، وہ میرے پاس ہے نہیں ابھی۔ اچھا، یہ وہ مل جائے گی آپ کو، دلی سے منگوا لینا۔ حیات صحابہ، حیات صحابہ، حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے حیات صحابہ۔ صحابہ کے واقعات ہے، کم سے کم 1100 صفحے کی ہے حیات صحابہ۔ ہاں، ایک معرف صحابہ چھوٹی سی ہے، اندور والے نے لکھی ہے، کوئی خاص نہیں ہے وہ۔ اچھا اچھا، وہ معرف صحابہ، اچھا، وہ ہمارے ساتھ سامنے بلایا تھا ان کو کوٹا سے، اندور سے کوٹا، مولانا عارف صاحب ہے تو قابل عالم، بہت آدمی اچھے نیک ہیں، لیکن وہ ان کے مقابلے میں وہ حیات صحابہ بہت بڑھیا ہے۔ انہوں نے معرف صحابہ لکھی ہے، وہ بھی دیکھ لینا، معرف صحابہ مل جاتے، وہ بھی اچھی ہے۔ اچھا، وہ بھی اچھی ہے، وہ ایک دیوبندی کی ایک بریلوی کی ہے، بس یہ ہے۔ اچھا اچھا، چلو دونوں کو رکھو، دیوبندی بریلوی کو، ایک کو جیب میں رکھو، کو اس جیب میں رکھو، جی جی جی، دونوں گر نہ جائیں کہیں۔ جی جی، دونوں کی ضرورت تو پڑے گی نا اپن کو۔ جی، 2 پہیوں سے گاڑی چلے گی، ایک سے چلے گی نہیں۔ جی جی، کیا خیال ہے؟ جی جی جی، جدھر سے کام نکل جائے نکالو بس، جی۔ بے پہندی کے لوٹے بن جاؤ بس۔ اور سنائیے، سب خیریت سے ہیں؟ ہاں، اور سب ٹھیک ہے۔ کہاں پر تشریف ہے آپ کی؟ ہماری نمبر کیسے ملا آپ کو؟ میں نے کئی بار آپ سے بات کری، آپ دھیان نہیں آپ کو، میں نے ویڈیو بھی ڈالی ہے بیٹے کی۔ اچھا، فاروق نام ہے آپ کا؟ میں بیٹا ہوں، اس سال فارغ ہو جائیں گے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا حافظ ارشاد حسین۔ اچھا، حافظ ارشاد حسین، چلو بہت اچھی بات ہے۔ ہلدوانی میں اب رضویت تو نہیں ہے زیادہ؟ یہاں تو بہت ہے ادھر، یہ 2-4 ہی تھوڑے ہی لوگ ہیں۔ یہ سید صاحب ہے، سید سہیل میاں، وہ مولائی ہے۔ یعنی رضویوں کا زور زیادہ ہے ہلدوانی میں؟ ہاں، ان کے لوگوں کا زیادہ ہے، کیونکہ پروگرام زیادہ ہی، اور امام وہی ہیں، تھوڑے لوگ ہیں اپنے لوگ۔ تو بتا رہے تھے کہ ہلدوانی میں میڈیم ماحول ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا؟ ہاں ہے، مگر اتنے نہیں۔ اور وہ ایک مولانا، ایک ڈاکٹر فاروق بھی تو ہیں، ڈاکٹر عثمان، ڈاکٹر عثمان فاروقی کو جانتے ہو؟ ڈاکٹر فاروق عثمانی، ہاں سید صاحب جانتے ہوں گے۔ تو ہلدوانی میں کتنی مسجدیں؟ 70 مسجدیں تو ہوں گی؟ مسجدیں تو بہت ہیں ادھر، مسجد میں بہت ہیں، مگر سب وہی لوگ ہیں امام، رضوی لوگ۔ جی جی۔ ارے اپنی کوشش کرو، مولائی حضرات بنانے کی کوشش کرو، جگہ جگہ پلاٹ خریدے مولائی لوگ، جی، کم سے کم 10 مولائی مسجدیں ہونا چاہیے وہاں پر، حضرت مولا علی کے نام سے۔ کیونکہ بریلی والے تو حضرت مولا علی کے نام پہ مسجد رکھیں گے نہیں، مسجد کا نام، ایک بات یاد رکھنا۔ جی جی، بریلی والے کبھی عام طور سے وہ حضرت امام باقر کے نام پر نام نہیں رکھیں گے، نہ حضرت امام جعفر کے نام پر، نہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے نام پر، نہ حضرت امام علی رضا کے نام پر۔ ان لوگوں کی مسجد ہیں، مطلب عائشہ مسجد ہے، اور یہ علی مسجد ہے نا، وہ لوگ رکھتے ہیں۔ علی مسجد ہے ایک عائشہ مسجد ہے، وہ لوگ رکھتے ہیں نام، یہ حسینی مسجد، علی مسجد، عائشہ مسجد، مگر سنیوں میں وہ جو رضائی پر رکھیں گے، وہ رضائی، اچھا رضوی لوگ نہیں رکھتے، دیوبند والے رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، ان کی مسجد ہیں اس نام کی، کیا عائشہ مسجد اور یہ ہاں عائشہ مسجد ہے، علی مسجد بھی ہے۔ یہ دیوبند والوں نے رکھا علی نام؟ علی مسجد جو ہے وہ تو سنیوں کے نام پہ ہے، سنیوں کی، اور عائشہ مسجد جو ہے وہ دیوبندیوں کی۔ اچھا، چلو برابری سے ٹکر ہے دیوبندی بریلوی کی۔ دیوبندیوں کی بھی 10-12 مسجدیں تو ہوں گی؟ ہاں 10-12 تو ہاں اتنے ہو جائیں گے، اتنی تو ہوں گی صاحب، تھلے سے لے رہے ہیں، کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اور اب برابری کی ٹکر اب ہو جائے گی، اس لیے کہ اب لوگ باغ پریشان ہو گئے، بلا کے تو تقریب والوں کو 50-50 ہزار، 40-40 ہزار۔ جی جی، ہاں، اب جو تھے وہ تو جیل میں بند ہو گئے۔ وہ کما کمو کے چلے گئے حضرت،
वो तो और सुनो एक बात सुनो, हाँ? अजहरी साहब आए थे यहाँ। अरे वो अजहरी है तो मैं मजहरी हूँ। हाँ तो वो जेल में है तो अजहरी साहब, अच्छा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आए थे हल्द्वानी? हाँ ये आए थे तो थोड़े दिनों बाद जो है वो जेल में हो गए। अच्छी शोहरत हासिल कर ली थी उन्होंने। हाँ वही नारे लगा के बहुत लंबा चौड़ा भीड़ हो गई थी वहाँ पर, है? जी जी। खैर नौजवानों के हीरो तो थे वो, अब बेचारे क्या करें नौजवानी में। आपका नाम मैं ये चाह रहा था हजरत, मैं ये चाह रहा था बेटे इस साल फारिग हैं खैरत से, तो कोई जगह अगर, हाँ कारी बन गए, हाफिज तो हैं। कट्टर सुन्नी अजमेरी सुन्नी है ना, बरेलवी देवबंदी नहीं हो, न देवबंदी हो न बरेलवी हो। तो मैं चाह रहा हूँ कहीं पर कोई जगह अच्छी हो तो हजरत मदरसा पढ़ाने के लिए लगवा दो। कट्टर में से बना दो आप पहले। हाँ वो तो है, अब कहीं जगह हो तभी तो, जगह दिलवाइए कहीं। तो मुझे मेरी बात करा दो बेटे से, वीडियो कॉल में मैं देख लूँ उसको। अच्छा। फिर उसको बाद में कोटा भेजूंगा। कोटा में हम भी यही चाह रहे हैं कि अलकट्टर में से सुन्नी हो, न देवबंदी हो न बरेलवी हो। देखो पढ़ाने के लिए कह रहे थे ये दोनों में से होने नहीं चाहिए जी। क्योंकि अपन को न देवबंदी बनना है न बरेलवी न अहले हदीस, सीधे कट्टर सुन्नी बनना है, अजमेरी सुन्नी। बेशक इस्लाम फैलाया हज़रत ख्वाजा गईना अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, दोनों मौज मस्ती कर रहे हैं, मजा मार रहे हैं, कौम को इधर से उधर घसीटते फिर रहे हैं। आपके बेटे को भी अलकट्टर में से सुन्नी बनाना और ऐसे का बनाना जो हज़रत अबू तालिब को मुसलमान मानता हो जी। और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहता हो। ये शर्त रख देना पीर से कि साहब अगर इमाम हुसैन को आप अलैहिस्सलाम कहते हो तो मुरीद बनाइए, और हजरत अबू तालिब, इसके अलावा इमाम हरम को आप मुसलमान मानते हो तो मुरीद बनाने तो चले आइए, आप तशरीफ ले आइए यहाँ से। जी। हाँ एक पहचान मस्जिद नबवी के इमाम को जो मुसलमान मानता हो, और नहीं माने तो उस पीर से फायदा ही क्या, मुरीद होने से कोई फायदा नहीं। जी। उसका शजरा पकड़ा दो कि ना लो शजरा पकड़ो अपने जा रहे हैं। जब तुम अल्लाह के रसूल की मस्जिद के इमाम को मुसलमान नहीं माना तो काहे के पीर है तू, चल निकल बाहर यहाँ से। जी। क्या ख्याल है? जी सही बात है। इंशाल्लाह मैं रखवा दूंगा, बल्कि मैं खुद ही रख लूंगा तुम्हारे लड़के को, क्योंकि मुझे तो ऐसी जरूरत थी जो न कट्टर ऐसा नहीं हो साला, देवबंदी नहीं हो न बरेली, क्योंकि देवबंद वाले भी दुआ नहीं पढ़ रहा अजान के बाद। जी। अजान के बाद की ये भी दुआ नहीं पढ़ते आमतौर से तबलीग जमात के लोग। अच्छा। जबकि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जो अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा मैं उसके लिए शफाअत करूंगा। बेशक। तो ये अजान के बाद की दुआ हम देखते नहीं पढ़ते आमतौर से, वो जो अवाम के लोग हैं ना वो तो पढ़ लेते हैं, मौलवी लोग नहीं पढ़ते। अच्छा। अरे मैं तो गहरी नजर रखते हैं मौलवियों के ऊपर, हाथ बांधे खड़े रहते हैं लेकिन एकदम मुसल्ले पे चले आएंगे। बस एक हमारा साथी था वो पढ़ा रहा है इधर क्या कहते हैं गुनाह के पास में रूठियाई में। अच्छा। तो मैंने मगरिब में पढ़ी, वो हमारे साथी ताज मसाजिद भोपाल से हम पढ़े हैं, तो वो वहाँ पर इमाम वो मदरसे चलाता, मेरा अक्सर जाना ना होता था उधर कोटा, तो उधर रुक जाता था नमाज पढ़ने के लिए। आप अपने पास लगा लेना। हाँ मैं लगा लूंगा। तो मैं बता रहा हूँ एक बात, तो वो मैंने वहाँ मगरिब पढ़ी तो देखा कि उसके तलबा लोग अजान की बात की बाकायदा दुआ पढ़ रहे। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये भी तो देवबंदी है, लेकिन इसके यहाँ तो बाकायदा अजान के बाद की दुआ पढ़वा रहा है, रुक के यानी अजान के बाद मगरिब के बाद। ये तो और जगह तो तबलीग जमात वाले पढ़ते नहीं, अजान हुई और एकदम नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे भोपाल में मैंने देखा एक जगह, ये नजमुल मसाजिद एक मस्जिद ईदगाह के पास में। अच्छा। अजान हुई वो इमाम सीधा चला गया। अरे दुआ पढ़ने में भी तो टाइम लगेगा। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा सलातिल क़ाइमाति सय्यिदना मुहम्मदिल वसीलता वल फज़ीलता व दरजतुर रफ़ीअता व बात मक़ाम महमूदन लज़ी यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। तो ये चीज कितनी देर लगेगी पढ़ने में? दुरूद शरीफ थी तो उसमें तो कोई टाइम नहीं। मैं भी वहीं पर था मस्जिद में नजमुल मसाजिद में, तो भोपाल में गया हुआ था, देखा इमाम एकदम मुसल्लत हो गया। अरे मैंने फिर उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। तो मैं कट्टर हूँ ना से हूँ, मैंने नहीं पढ़ी नमाज। अगर जो देखूं इमाम के दुआ के अजान के बाद दुआ नहीं पढ़ा फिर कराहियत हो जाती है। जी। जब अल्लाह के रसूल के फरमान पर तुम अमल नहीं कर रहे तो काहे को तुम्हारे पीछे हम नमाज पढ़े? हुजूर ने फरमाया कि जो अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा ये कोई बरेलवियों की किताब नहीं है, कोई देवबंदियों की नहीं है, ये तो अल्लाह के रसूल का फरमान है। बुखारी शरीफ हदीस है, हदीस है बुखारी शरीफ में। फिर भी तुम लोग नहीं मानोगे, बरेलवी पढ़ते हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे। जी। तो मतलब जो काम बरेलवी करेगा तो तुम नहीं करोगे, जो काम तुम करोगे तो बरेलवी नहीं करेगा। यानी तुम लोगों ने आपस में कंपटीशन कर रखा, मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर डाला तुम दोनों।
सही बात है, सही बात, यही चल रहा है। अगर देवबंदी ऊंचा पजामा पहनेगा तो बरेलवी नीचा पहनेगा कि हम तो नीचे पहनेंगे, ये साथ देवबंदी ऊंचा पहनता है। पता नहीं क्या हो गया मुसलमानों को। ये तो सुन्नत रसूल है ना, ऊंचा पहनना। बेशक गट्टे दिखना चाहिए। सुन्नत रसूल को ये बरेलवी लोग अलग वो उससे दूर हो रहा है कि नहीं, वो देवबंदी ऊंचा पहनते हैं। अरे टखनों से ऊंचा पहनना रखना सुन्नत है, वो तो अब कोई भी रखे, देवबंदी रखे या बरेलवी। अब मैंने एक बात इसमें आजमाई, आप उनकी प्रेम जी साहब की वो देखना, प्रेम जी साहब है मथुरा में वृंदावन में, अच्छा, जहाँ पे मोहतरम हजरत प्रेम जी साहब बहुत मशहूर हो रहे हैं, पीली ड्रेस में रहते हैं। प्रेम जी साहब है, प्रेमदास नाम है उनका, बहुत काबिल शख्सियत है, बहुत बड़े मथुरा वृंदावन में रहते हैं। उनकी मैंने लुंगी देखी तो पिंडली तक लुंगी थी, उनके शिष्यों की मुरीदों की भी लुंगी पिंडली तक थी, पिंडली तक। अच्छा। तो मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा देखो अल्लाह ताला इनसे अमल करवाना है, जैसे बरेली वाले नहीं कर रहे तो अल्लाह इनसे अमल करवाना है, गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों से अमल करवाना है। पंडित हैं बहुत बड़े। इसी तरह आप उनकी देखिए वृंदावन में सदगुरु मानी श्रीमान हजरत रिटेश्वर जी महाराज साहब, उनका आप देखो पजामा, वो लुंगी देखना आप ऊंची मिलेगी आपको। अच्छा। मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ, हिंदू भाइयों के अक्सर पंडितों को देखना बड़े बड़े, तो उनकी लुंगी आपको टखनों से ऊंची मिलेगी। हाँ सर, टखनों से ऊंची होती है। कहना देख लो बरेलवियों, कट्टर बरेलवियों देख लो, हिंदू भाइयों को देख लो, इनके पंडितों को देख लो, ये ऊंची रख रहे हैं, तुम नीची, तुम काहे के कैसे ईमान वाले। हाँ, इनके तो गट्टे ढके रहते हैं बरेली वालों, ढके रहते हैं। और हिंदू पंडितों को दिखाना, महाराजों के बड़े बड़े संतों के, जैसे शंकराचार्य साहब हैं, हजरत अल्लामा शंकराचार्य साहब, उनकी ऊंची दिखाने लुंगी देखो ऊंची। बल्कि अक्सर हिंदू भाइयों के देखना महाराजों की लुंगी ऊंची मिलेगी आपको, गौर करना। ऊंची होती है उनकी होती है ना। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह इनसे अमल करवा देता है। बरेलवी नहीं करेगा, बरेलवी तो सोचेगा कि देवबंदी करता है। अरे बरेलवी देवबंदी क्या तुम लोग तमाशा बना रखा हम लोगों को गुमराह करने का। अरे एक ने कांग्रेस पकड़ रखी, एक ने बीजेपी, यानी कांग्रेस से टिकट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बेचारा वो सोचेगा साहब टिकट नहीं मिला साहब। अरे टिकट नहीं मिला तो बिना टिकट के खड़े हो जाओ, निर्दलीय खड़े हो जाओ। हाँ यही तो हो रहा है। बरेलवी बहुत से आलिम ये सोचते हैं यार अगर हमने बरेलवियत छोड़ दी तो हमें 50,000 का तकरीर नहीं मिलेगी, और बुरके की बिरयानी नहीं मिलेगी, न बकरे की मिलेगी। देवबंद वालों में तो रूखा सूखा मामला है। हाँ नहीं, हकीकत भी है, देवबंद वाले इतने देंगे कुछ नहीं करते हैं, जो नजराना मिला नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है बरेलवियों के नहीं छोड़ने का, वरना आज हजारों बरेलवी छोड़ने बरेलवियत। वजह है कि अगर छोड़ते हैं तो हम इनमें कहाँ तकरीर करेंगे, तो देवबंद वाले 5,000 से ज्यादा देते नहीं है। हाँ ये लालच इनको लगा हुआ है बरेलवियों का असली में। हाँ अगर थोड़ा देवबंद वाले दस्तरखान कुशादा कर दें और शाही दस्तरखान बिछा दें। कौन सा दस्तरखान मशहूर था वो दुनिया में, क्या नाम है उसका, शिराजी, दस्तरखान शिराजी अगर वो कर दें तो हजारों बरेलवी इनके दामन में चले आए। बस ये है कि दस्तरखान शिराजी बिछा दें और थोड़ा इनको हस्बे हैसियत पैसा भी दें, ऐलान कर दें, पहले से ऐलान कर दें अशरफ मदनी साहब और जितने जमीयतुल उलमा के देवबंद नजवा के साहब, आप बरेलवी हजरत अगर आना चाहें आए, हम आपको नजराना हस्बे हैसियत देंगे, शान देंगे, ज्यादा नहीं देंगे न कम देंगे, जो जरूरत है जमाने की देंगे। अब आप सोचोगे हम पूरा पेट भर के लिए हाथी के बराबर 50,000 तो हम नहीं दे पाएंगे, हमारे आलिमों को हम नहीं देते। आप 5,000 6,000 देंगे, बस आप आइए, हस्बे जरूरत के साथ हम दे देंगे। ये पहले से देवबंद वाले ऐलान कर दें जगह जगह जी। नहीं हजारों लोग बरेलवियों के आलिम किनारे पे बैठे हैं आने के लिए। हाँ। यही प्रॉब्लम नहीं आने देती यार, इनमें जाओ तो कोई एक पैसा नहीं देगा जल्दी से, ईद बकरीद में मुसाफे में नहीं देंगे लोग। और ये हकीकत है, देवबंद वाले ईद बकरीद में अपने इमामों को 1 रुपया तक नहीं देते। और ये बरेलवी लोग नोट बिछा देते हैं, ऊंच निछावर कर देते हैं। तो ये भी तो एक वजह है ना नहीं निकलने की। सही बात है। हक तो जाहिर हो चुका है बरेलवी हजरात को भी कि यार गलतियां तो हैं यार, हमारी किताबों में भी हैं और देवबंद वालों की किताबों में भी हैं, दोनों की किताबों में सब समझते हैं गलतियां हैं आपस में। जैसे हजरत मौलाना आमिर उस्मानी साहब थे ना, तजल्ली के एडिटर देवबंद के, वो भी मानते थे। तो उन्होंने भी कहा था कि इन किताबों को नजर आतिश कर दो, जवाब न दे पाओगे। तो उनसे फिर देवबंद वाले नाराज हो गए थे मतलब। और इधर से बरेलियों के बड़े आलिम मुफ्ती शरीफ उल हक जदी, मेरे पास उनकी किताब है फताव शार बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा 36 में लिखा है, अल मलफूज अहकाम शरीयत का जो हाल है वो अहले इल्म से छुपा नहीं है।
مخفی نہیں ہے، اس میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں، سینکڑوں بتائیں صرف 2 کتابوں، چھپائی کی نہیں بتائیں، ڈائریکٹ بتائیں، ڈائریکٹ۔ اچھا یہ کیا کہتے ہیں نہیں چھپائی کی کہا لکھا ہوتا، چھپائی کی غلطیاں اس نے ڈائریکٹ لکھی۔ جب 2 کتابوں میں مفتی شریف اللہ قمجدی جیسے سینکڑوں غلطیاں بتا رہے ہیں، صفحہ 36 فتاوی شارح بخاری میں، تو ان کے مزار پہ جا کے کہو نا، وہاں پر شکایت کرو نا کہ تم نے اتنی غلطیاں کیسے دیکھ لی؟ بھائی سینکڑوں غلطیاں کتابت کی بھی کیسے ہو جائیں گی؟ سینکڑوں، صحیح بات ہے بھائی سینکڑوں کتابت کی کیسے ہو گئی؟ دو کتابوں میں یار اتنی کیسے ہو جائیں گی؟ اور کتابوں میں کیوں نہیں ہو رہی؟ دیوبند والوں کی، نظم والوں کی سینکڑوں جی نہیں، کتابت کی اتنی غلطیاں کافی ہو جائیں گی۔ جی اتنی اور کام دوسری بات یہ ہے کہ 100 سال سے کتاب چھپ رہی ہے، کیا تم یہی بہانے بناتے رہو گے کہ وہ کتابت کی غلطی، وہ کتابت کی غلطی؟ 100 سال تو ہو گئے نا اعلی حضرت کے انتقال ہوئے، جی جی تو اب کب تک کتابت کی غلطی کا بہانہ بناؤ گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ جی صحیح بات تو انہوں نے کتابت کی غلطی کہہ کے بے وقوف ڈرامہ بنایا، اور آج بھی وہ کتاب ویسی چھپ رہی ہے۔ اس کو دعوت اسلامی والوں نے ضرور نکالا ہے، جو باتیں تھی نا اختیار والی، جس میں انبیاء لکھا ہے، اس میں 27 میں الملفوظ میں جلد میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، استغفر اللہ بن کو رحمۃ اللہ۔ یہ 27 جلد، ہاں لکھا ہے، میں بھیجوں گا آپ کو۔ اچھا ویڈیو، اس کی ویڈیو ڈل چکی ہے، بہت زبردست ہنگامہ ہے اس کا۔ اچھا تو اس میں صفحہ 27 جلد سوم میں ہے، جلد سوم میں۔ اچھا تو اب یہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ انہوں نے کاپی کیا ہے، علامہ عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے کاپی۔ ارے تو اس سے پہلے کسی اور نے کاپی کیوں نہیں کیا؟ وہ ان کا زمانہ آج کا تھوڑی ہے، علامہ عبد الباقی صاحب تو 800 سال پہلے کے ہیں۔ جی جی تو ان سے کس کس نے کاپی کیا؟ ان کے نام بتا دو ذرا، 2-4 کے نام بتا دو کہ انہوں نے ان سے کاپی۔ یہ تو مکار لوگ ہیں، یہ خود بھی لکھ دیں گے کتابوں میں کسی کی، کیا معلوم کیا کیا کر ڈالے ہیں۔ تو صحیح بات ہے، الحق کو الحاق خود ہی کر ڈالے، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لکھا، دیکھو یہ لکھا۔ ویسے تو ایسا بتا نہیں سکتے لوگ ورلڈ میں، آج ورلڈ میں کسی عالم نے علامہ عبد الباقی زرقانی صاحب کی حوالے سے ایسی بات نہیں کہی ہے کہ صاحب انہوں نے لکھا ہے تو ہم بھی لکھ رہے ہیں، ایسا کسی نے نہیں لکھا، صرف فاضل بریلوی نے لکھا ہے۔ آپ نے بھی نہیں سنا ہوگی کبھی یہ بات، سنی ہے اس طرح کی؟ جی نہ سننے میں عجیب لگتی ہے۔ اسی لیے تو یہ کتابیں میں چاہ رہا ہوں جس سے ہمیں تھوڑی بہت معلومات ہو، تاکہ میں سب آپ کو لسٹ بنا کے دے دوں گا۔ الملفوظ خرید لینا آپ، مفتی شریف کی فتاوی شارح بخاری دونوں جلدیں خرید لینا، اور تفسیر النشاء جلد اول اور دونوں 2 حصوں میں آتی ہے، حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کہ فاضل بھائی کے ماجد نے اگر یہ کتاب ہلدوانی میں آ گئی 50، یہ 40، تو پھر سمجھ لو کہ پورے ہلدوانی میں انشاءاللہ میڈیم ماحول ہو جائے گا، مولائی سلسلہ ہو جائے گا بس۔ یعنی وہ لوگ نہ دیوبندی بنیں گے نہ بریلوی، سیدھے کٹر سنی رہیں گے بس۔ جی سنی ہونے چاہیے، سنی ہو بس، یہ کیا دیوبندی بریلوی کچھ ہونے نہیں چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ مردے کو دفن کیا اور بھاگ لیتے ہیں، ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا، مردے کو دفن کر کے بھاگ لیتے ہیں۔ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے یہاں، باقی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ دیوبندی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہاں یہ تو اب عام طور سے بہت سی جگہ، بہت کم جگہ رکتے ہیں، عام طور سے لوگ بہت جلدی بھاگ رہے ہیں، پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا۔ یہ تو میں نے خود دیکھا، میں نے فاتحہ خود پڑھی تھی۔ نہیں میں بھی تھا ایک جگہ ہمارے یہاں علاقے میں، تو ایک نے اعلان کیا اتنی دیر رکنا چاہیے، اونٹ مطلب خود بتا رہا ہے کہ اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جائے، اور خود ہی بتا رہا، خود ہی بھاگ رہا ہے، میں اکیلا کھڑا رہا۔ میں نے پھر آگے مسجد میں بتایا میں کہ اتنی دیر میں تو ایک بکری بھی ذبح نہیں ہو پائے گی، بٹ سکتی، اس نے تو اونٹ کا کہا، خود ہی روایت بیان کی۔ تو ایک صاحب کہنے لگا صاحب مرغی بھی نہیں بن پائے گی اتنی دیر میں تو۔ ہاں مطلب انہوں نے بتایا، میں مسجد میں آیا نا جو ہمارا گاؤں کی شمل ایسی مٹی دے کے بھاگتے ہیں، ذرا دیر ہاتھ اٹھائے یہ بھاگ لوگ بھاگ لیے۔ نہیں تو یہ عام ہو گئی ہے ان لوگوں میں بات۔ اور اذان بھی کچھ بھی نہیں، اذان کا تو خیر حکم نہیں ہے وہ دینے کا قبر پہ، بس یہ ہے کہ وہاں پر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے، ذکر اذکار کرے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں۔ سورہ بقرہ ہے یہ چیز نہیں وہ جو حکم ہے وہ یہی ہے صحابہ کرام سے لیتا، جو سلسلہ ہے کہ جو بھی پڑھنا آپ پڑھتے رہیں، درود شریف، سورہ بقرہ، فاتحہ، یاسین شریف۔ ہمارے یہاں تو ایک رکوع وہ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سرحانے الاسلامین سے لے کے پہلا رکوع، اور وہ سورہ بقرہ کا ایک رکوع پڑھتے ہیں، ایک ادھر سے پڑھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ آپ کے سلسلہ ہے سرحانے اور پیتیانی کا؟ جی ایسے ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں دعا مانگتے ہیں۔ ہاں یہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ وہ پردے کے بعد دفن کرتے ہیں نا، تو ہاتھ اٹھا کے کافی لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں، جو سمجھدار ہیں وہ تو آج بھی مانگتے ہیں ہمارے یہاں۔
यहाँ कुछ रुक जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। नहीं, जो हमारे यहाँ भी देवबंद वाले हैं, बहुत से ईमान वाले हैं, वो तो हाथ उठा के ही मांगते हैं। और जो इधर उधर के पढ़ के आ गए ना आजकल के छोटे मोटे मौलवी, ये बेचारे को हाथ उठा के दुआ मांगने में बिदअत शिरक नजर आता है कि बिदअत हो जाएगा, शिरक हो जाएगा। तो जब बिदअत हो जाएगा, शिरक हो जाएगा, तो कब्रिस्तान में क्यों आया? अपने घर पे रहता, वहीं पड़ा रहे। सही बात है, सही ऐसे लोग मुझे नहीं मिलते, क्या वो देवबंदी है बरेलवी? देखो मैं तो हक्का डंका बजाने वाला हूँ, मैं देवबंदी ना बरेलवी ने। मैं तो डंडा यहाँ मेरे पास डंडा भी है कहीं पर, बाथरूम में भी है कहीं। क्या है, आए देवबंदी बरेलवी कोई भी अपनी ठूसेगा तो वह डंडा है कहीं पर, मैं बताऊँ डंडा रखा है। और भी चीज है मेरे पास, तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं, कोई भी है इंशाल्लाह। ये डंडा है, देखो बता दिया मैंने आपको सामने जी, सही बात। और इधर एक चीज और रखी है, नाम नहीं बता, कोई भी आ जाए देवबंदी बरेलवी अलग मौजूद, अगर उसने अल्लाह उसके रसूल के फरमान के खिलाफ बात की तो ये पढ़ेंगे बस। अरे बताना है तो शब्द बताओ, ये देवबंदी हिसाब से नहीं बताओ, न बरेलवी हिसाब, न अहले हदीस को कोई गुंजाइश। वो तो अहले हदीस वही हदीस से मानता है जो उसके मतलब के मुताबिक हो, समझ में। अभी टांडा से फोन आया था मेरे पास, रामनगर से, बड़ी बदतमीजी कर रहा था वो, इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे मिल जाए तो मैं देखूं। तो वो बहुत बड़ा क्रिमिनल दादा बन रहा था, मतलब दादा बन रहा था, क्या बन रहा था अपने आप में, क्या क्या। टांडा कौन सा बात? ये टांडा है ना रामनगर के पास में। हाँ, अच्छा, हाँ। बड़ी बदतमीजी कर रहा था। अगर अजमेर शरीफ में अगर मिल जाए तो इंशाल्लाह मैं उसे देखता हूँ। अजमेर शरीफ तो आएगा नहीं डर के मारे मेरे, क्योंकि हजरत ख्वाजा की वो करामत ऐसी है कि वो ऐसे बदतमीजों को वहाँ ठहर नहीं सकते। हाँ, पिटाई हो जाती है, देखा नहीं पिटाई कितनी हुई। हाँ, नहीं आएगा टांडा वाला। अगर 1000 आदमियों को भी लेकर जाएगा ना रामनगर से मैं लड़ने के लिए, तो उनका किराया भी मैं दिलवा दूंगा, चल आजा लेके लड़ने के लिए। मगर उनसे बहस करने आके यहाँ पर मसले की हालत चलेगा, इस नियत से आ तो मैं तेरा 2 लाख रुपए किराए में करवाता हूँ। फिर हिम्मत है तो नहीं आएगा टांडा वाला। मैं कहूँगा अजमेर शरीफ आ, इनसे मुजाविरों से बहस करने तो नहीं कर रहे, चल पहले तू इनसे कर। वो मुजाविर बहुत कर रहे हैं। अंदाजा लगाओ, हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का इतना बड़ा पावर है कि मुजाविरों में इतना दम है कि 5 करोड़ बरेलियों के ऊपर 5000 मुजाविर भारी हैं। जी। नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर। अरे 5000 मुजाविर है, 5 या 6 7 मान, लेकिन इतने कम मुजाविर हो के पूरे हिंदुस्तान में भारी हैं। ये क्या कब बात है? और पिटाई लगाई वो अलग पिटे नहीं, पीटते। अगर उनको मार दिया ना किसी मुजाविर को, अगर एक आप बरेलवी ने, तो फिर तो खैर नहीं, फिर तो डंडे बजाएंगे बुरी तरह से ना, सुन डंडे बजाएंगे। नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज बहुत बड़ा रहम करम है माशाल्लाह। अरे देखो ना मुजाविरों में दम, देखो ना यार, इतने कम मुजाविर हो के कितना मारते हैं लोगों को। और एक बार नहीं पिटे, बहुत पिटे, कई बार पिटे, कई बार पिटे होंगे। एक बार तो वो डिडवाना का इमाम था, उसे मारा था, कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे। अच्छा। एक बार बताया, मैं गए हुए था वहाँ पर, तो हजरत अल्लामा अरशदुल कादी साहब के बारे में बताया कि उनको भी धक्के देके इन्होंने निकाल दिया था। वो वहाँ पर ये क्या है, यौम अली मनाते शिया रात, हजरत अली करमलाजू करीम अलैहिस्सलाम का दिन मनाते हैं रमजान शरीफ में 21 तारीख को। अच्छा। तो मैं भी था एक बार वहाँ पर रमजान शरीफ में। अच्छा। तो मैं उधर घूमते घूमते वो ईशा के बाद में मैं उधर चले गए जहाँ हजरत अली का प्रोग्राम जश्न होता है। तो कुछ फोटो रखे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा। तो फोटो तो खैर नहीं रखना चाहिए, मना है। तस्वीरें मैंने जब करीब से देखी, प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, मुझे मौका मिल गया करीब जाने का, तो फोटो लगे हुए थे उसमें। वो गलत है, फोटो नहीं लगाना चाहिए हजरत अली के नाम से। किसी के नहीं लगाना। अब वो नाम तो क्या मालूम हजरत अली का लिखा था, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो उसी अंदाज में कि जैसे हजरत अली शेर खुदा है, उसी लेवल से बनाया था उन्होंने, तंदुरुस्ती में, यानी जैसे पहलवानों का फोटो होता था। अच्छा। लेकिन वो सही नहीं था शायद, वो मामला है। तो अरशद काजी साहब ने कुछ ऐसी बातों को मना किया, वो शायद उन्हें बताया, धक्का देके निकाल दिया था। अच्छा। ये धक्का मुक्की कर दी थी। तो वो तो मुजाविर तो क्या, वो कोई से डरे ही नहीं है। पुलिस वहाँ उनकी है, मिलिट्री उनकी है, सब कुछ उनका, ये प्रशासन उनका है, कैसे लड़ लोगे आप? हिंदुस्तान उनका है। अरे हजरत ख्वाजा मुर्शिद है हिंदुस्तान का। वहाँ पर ऐसा फेज है कि अगर मुजाविर ये कह देंगे दिल्ली में, उसी तुरंत फोन कर देंगे, हजरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, ये बरेली वाले आए हुए हैं, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इतना कहने में ही शायद मैं तो ये कह रहा हूँ कि शायद पूरी मिलिट्री लग जाएगी। हजरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब
حضرت علامہ نریندر مودی صاحب پوری ملٹری لگا دیں گے کہ ہمارے جو مجاوروں کو پریشان کر رہا ہے گھیر لو ان کو، چاروں طرف سے گھیر لو، پھر بند کر دیں گے، کو پکڑ پکڑ کے بند کر دیں گے کہ حضرت علامہ پردھان منتری نریندر مودی صاحب کا بھی آرڈر جائے گا کہ مسئلہ کی حالت کا نعرہ نہیں لگے گا، جیسے وہ بتائیں گے نا وہاں سے کہ صاحب یہ مسئلہ کی حالت کا یہ 5واں مسلک ٹھوستے ہیں آگے اور یہاں کے نعرے لگاتے ہیں بڑے، تو وہ منع کر دیں گے نہیں 5واں مسلک نہیں 4 مسلک چلیں گے، بس آپ کے یہاں جو 4 مسلک ہے وہی چلیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کو بتایا جائے گا تو وہ بھی یہی فیصلہ کریں گے، بتایا جائے گا نا حضرت ہمارے یہاں صرف 4 مسلک ہے، 5واں نیا مسلک ٹھوس رہے ہیں ہم لوگوں کے اوپر اور زبردستی منوا رہا ہے کہ 5واں مانو، اور یہ مکرانے والا بھی یہی منوا رہا ہے، مکرانے کا مکار کہیں کا ارے گائے کا مکرانے کا مقرر، وہ خود وہی انڈر گراؤنڈ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے، اس کے گھر والے رشتے دار تو دیوبندی ہیں وہاں گونڈا میں، اپنے رشتے داروں کو سنی بنایا نا، خود اقرار کر رہا تھا کہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے، تو تیری ذمہ داری کیا تقریر کرنے کی ہے بس، اور ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے خاندان والوں کو تو دیکھ رہا ہے دیوبندی ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، انہیں سنی نہیں بنائے گا، دوسروں کو بنائے گا۔ مکرانے والا بھی وہی 5واں مسلک کا ہی مان رہا ہے، وہ اقرار کر رہا تھا، ابھی میں نے چینل میں دیکھا، ایک چینل ہے رہبر بستوی کے نام سے، تو رہبر بستوی کے چینل میں بن رہا ہے کہ مسلک کی اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت، مسلک مطلب یہ ہو گیا کچھ لوگ حالانکہ ان کی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا شروع کرتے ہیں نا، جیسے یہ مسلک کی حالت کہہ کے یہ بس یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں زیادہ کٹر سنی مانے، اور صاحب یہ تو مسلک کی حالت کے سپاہی ہیں، یہ مطلب ایک یہ ان لوگوں میں یہ ہوڑ ہو رہی ہے، بنا رکھا ہے انہوں نے، نہیں کمپٹیشن ہو رہا ہے ان لوگوں میں ایک طرح کا کہ میں مسلک کی حالت والا ہوں، کہ میں مسلک کی حالت والا ہوں۔ ارے دیوبند والوں میں چلو ہم نے دیکھا کمی ہے، سب میں ہوتی ہے، لیکن ایسی کمی تو نہیں ہے کہ وہ اپنے عالموں کا پرچار کرتے ہوں منوانے کا، کبھی سنا بھی کسی دیوبندی نے اپنی عالموں کو تھانوی صاحب کو ایسے منوایا؟ سنا کبھی آپ نے؟ کبھی نانوی صاحب کا چرچا سنا آپ نے؟ یہ تو ہے، کبھی سنا؟ نہیں سنا آپ نے؟ وہ کرتے نہیں ہے نانوی صاحب کا، تھانوی صاحب کا، اور کسی کا چرچا ہی نہیں کرتے، دیوبند والے اپنے عالموں کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ تو اللہ رسول کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں بس۔ اور سب سے اچھی بات تو دیوبند والوں میں ہے کہ کم بیش 89 مسجدوں میں بھوپال میں قرآن کی تفسیر سناتے ہیں دیوبند والے، 89 میں ایک شعر میں، اور بریلی والے پورے ہندوستان میں نہیں سنا رہے اتنی مسجدوں میں جتنے ایک شعر بھوپال میں سنا رہا ہے، دلی میں الگ سناتے ہیں، لکھنؤ میں الگ، ہر جگہ پوری ہندوستان میں سناتے ہیں دیوبند والے، کم بیش ہندوستان کی اگر لگایا جائے تعداد تو 5000 7000 یا 8000 تک ان کی تفسیر کرنے والے ہوں گے، 5000 7000 یا 8000۔ اور بریلیوں میں کتنے ہیں میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں بس۔ مفسر اعظم ہند حضرت مولانا قاری ظہیر الدین خان صاحب، امام اسماعیل حبیب مسجد ممبئی، وہ سب سے بڑے مفسر ہیں اس وقت بریلیوں پوری دنیا کے، تو ان کو بریلیوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب نے کہ گمراہ ہے، یہ دیوبند والوں کے ساتھ بیٹھتا علماء کونسل میں، علماء کونسل کا مطلب جس میں دیوبندی بریلی سب جمع ہوتے ہیں، تو ان کو تو الگ کر دیا، لے دے کے ایک مفسر تھا اس کو بھی بائیکاٹ کر دیا، گمراہ ہے۔ اب مبلغ اسلام حضرت محمد شاکر رضوی صاحب اچھے مقرر، ان کی تقریر دیوبند ندوہ میں بھی ہو سکتی ہے، دیوبند میں بھی ندوہ میں بھی، نفت اللہ بولتے ہیں محتاب، بہت اچھے مقرر ہیں، ان کو بھی گمراہیت میں لے لیا کہ یہ بھی گمراہ ہے مولانا قاری ظہیر صاحب کے ساتھ میں۔ کہ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 6 مہینے میں ہم واپس لے لیں گے، وہ 6 مہینے میں انہیں سمجھا لیں گے، ایسے کہہ کے قاری ظہیر صاحب کا بتایا پیر صاحب نے کہ نہیں سمجھایا اس نے، یہ تو ہم سے ہمارے آدمیوں سے الگ ہو گیا، یہ بھی گمراہ ہے، شاکر رضوی بھی گمراہ ہے، جبکہ شاکر رضوی صاحب کی تقریر تو سلمان اظہری سے 10 گنا اچھی ہوتی ہے، مفتی سلمان اظہری صاحب کی تقریر ہوتی ہے لیکن ان سے اثردار تقریر ہوتی ہے شاکر رضوی صاحب۔ شاکر رضوی صاحب کی تقریر میں اثر ہوئے، بریلوی جماعت میں کیسے مقرر ہے۔ یہاں پروگرام مفتی اظہری صاحب نے یہاں کرا ہلدوانی میں، مگر مولا علی کا جب نام آیا تو ادھر ادھر صحابہ پہ پہنچ گئے۔ کون پہنچ گئے؟ یہی لوگ؟ ہاں، مگر نام نہیں آیا، نہ نعرے لگے، نہ اچھا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا انہوں نے؟ نہ وہی، اور نعرہ کیا ہوا، وہ لبیک والا، یا رسول اللہ، ارے لبیک بول رہے ہو، سرکار سے دوستی رکھ رہے ہو اور علی سے دشمنی رکھ رہے ہو، اور 4000 حدیث ہیں کم بیش حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی شان میں۔ جی میں تو اجمیری سنی ہوں، کٹر والکٹر ہوں میں سے۔
फिर जब यहाँ से ये गए तो वही 4-5 महीने के बाद ये केस लग गया। पूरे हल्द्वानी में, पूरे रामनगर में, पूरे काशीपुर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, अलवर्ल्ड में कोई भी बरेली मुझसे बात नहीं करेगा इस मामले में। काबे के इमाम को मैं मोमिन साबित करता हूँ, मस्जिद नबवी के इमाम को मोमिन साबित करता हूँ। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है, हदीस पाक है। आपके गुलाम भी जिंदा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुतिलू फी सबिलिल्लाह, बात है जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए, अल्लाह फरमाता है बल अहयान, बल्कि वो जिंदा है। नबी के जब गुलाम जिंदा है तो नबी तो बदरजा औला जिंदा है, कुरान में बल अहयान इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। और दूसरी बात यह है कि देवबंदी बरेली सब मुसलमान है, ये तो इनके आपस में एक दूसरे की किताबें लाते हैं एक दूसरे के ऊपर कि तू मेरी किताबें लाद ले, मैं तेरी किताबें लाद लूं। मतलब वो जैसे मुनाज़रा होता है ना, अभी आप हल्द्वानी में मुनाज़रा करवा लो, उधर से जोखनपुर वाला जाएगा, इधर से वो देवबंद वाले जाएंगे। हाँ भाई, अब जैसे जोखनपुर वाले की बारी आएगी, साहब बताओ साहब क्या गलतियां हैं। ये देखो तुम्हारी हिफ्ज़ुल ईमान में लिखा है, तक़वीयुल ईमान में लिखा है, सिरात मुस्तकीम में लिखा है। अब 10 मिनट पूरे हो गए टाइम आपका। अच्छा, ये देखो तुम्हारी फतवा रज़िया में ये लिखा है कौवे खाने को इन्होंने भी जायज बताया, तुम्हारे आला हज़रत ने 2 तरह के कौवे जायज बताए, एक पहाड़ी कौवा है, खेती का, ये देखो ये लिखा है। और ये फतवा रज़िया में यहाँ ये लिखा है, अल मलफूज में यहाँ ये लिखा है, और तुम्हारी उस किताब में सुबह सुबह में यहाँ लिखा है। वो 10 मिनट उसकी उधेड़ेगा, ये उसकी उधेड़ेंगे, हैं? ऐसा ही होता है ना मुनाज़रे में, दोनों एक दूसरे की पोले तो खोलना है, तो मतलब कोई किसी से कम नहीं है, सबके पास एक दूसरे की पोल पट्टी है, कमियां। काय को कौन को बेवकूफ बना रहा, दोनों अपनी अपनी गलतियां मान लो ना, खत्म हो जाए झगड़ा। दोनों गलतियां मानते नहीं है। सही बात है। जैसे टांडा रामनगर से मेरे पास फोन आया था जो परसों, बड़ा दिमाग आप भी खराब है, मुझे कहीं अजमेर शरीफ में मिल जाए तो देखो आ जाए अजमेर शरीफ, तो मुझे फोन करे बता दे कि इस तारीख को मैं अजमेर शरीफ पहुंचा। क्या 100 आदमी को लेकर पहुंचे, इंशाल्लाह मैं नारे तकबीर लेके मुजाहिरों को इकट्ठा न कर लूँ। नारे तकबीर आ जाओ, मुजाहिर आ जाओ। ये कौन लोग आया हुआ रामनगर से आया है, ख्वाजा इमाम से बड़ा मनवाना चाहता हुआ, आला हज़रत को देखे कैसे मनवाएगा। आजा मनवा यहाँ पर, तू ख्वाजा इमाम से बड़ा मनवा आला हज़रत को। तो वो डर जाएगा, शायद एक नारे में मेरे डर जाएगा। इतनी जोरदार नारा लगाऊंगा मैं अजमेर शरीफ में, तमाम मुजाहिर इकट्ठे हो जाएंगे। मेरे तो फिर अलग ही नारा होगा उस दिन, जिस दिन मैं लगाऊंगा अजमेर शरीफ में। कह जाने के लिए आएगा वहाँ। अजब ख्वाजा गालिब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का कोई मामूली एहसान थोड़ी है। इन लोगों ने तो एक साइड कर रखा है, दावत इस्लामी वालों ने भी। कोटा में फैजान आलात के नाम से बोर्ड लगा रखा, फैजान रज़ा आलू, गरीब नवाज का नाम भी नहीं लिखा इन्होंने स्टेशन पे, गरीब नवाज का नाम भी नहीं है बोर्ड में। न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम है, न इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम है, न हजरत अली का नाम है। ये दावत इस्लामी वालों ने। अच्छा, आपके यहाँ जोर तो नहीं है दावत इस्लामी वालों का वहाँ पर हल्द्वानी में? हाँ है, एक मदरसा है, मदरसा है, एक हो गया मदरसा। अरे यार क्या कहाँ का ये मदरसे बना रहा है? क्या इनको कानून का खजाना मिल गया? जहाँ देखो वही मदरसे बना रहा है, पैसा बांट रहा है। कहाँ से आ रहा है इनके पास इतना पैसा? पैसा हर जगह गोलक रखे हुए, इनके डिब्बे रखे हुए हैं। अरे तो गोलकों से इतना चंदा थोड़ी होगा, ये तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का एक वो है, बहाना है, वरना इतना चंदा गोलकों से नहीं होता है। आप भी समझते हो, एक मस्जिद बनती है हल्द्वानी में, बनेगी तो 4 साल लग जाएंगे। रामनगर की हम जहाँ जाते हैं, जहाँ में मस्जिद बनी तो करीब 4 साल या 5 साल लग गए। हजरत मौलाना मुफ्ती हसन रज़ा साहब से बहुत काबिल आलिम थे वो 12 साल रहे, बहुत अच्छे बेचारे नेक आलिम थे, वहाँ से निकल गए। तफसीर भी सुनाना शुरू कर रहे थे वो, लेकिन ये सुनते ही नहीं थे, सुन्नियों में हिसाब नहीं। बेचारों ने बहुत अच्छी तफसीर वो खिदमत की 12 साल। अब कमाल के बहाने से उनको निकाल दिया। अब खैर वहाँ भी काबिल आलिम है, और उनकी जगह बाद में हजरत मौलाना गुलाम नूरी साहब हैं, अच्छे आदमी हैं, शरीफ हैं, और चेहरा नूरानी है। लेकिन मुफ्ती हसन रज़ा साहब वो भी काबिल थे, वो ज्यादा काबिल थे, ये उनसे ज्यादा काबिल है। खैर अभी जो जामे मस्जिद हल्द्वानी वो है ना रामनगर में, अच्छा, मौलाना गुलाम मुस्तफा नूरी कलमकार भी है, सुना रईसुल कलम है या जो भी है, रईसुल तहरीर वगैरह। लेकिन अपने उस्तादों का अदब करें, मैं तो ये कह रहा हूँ, मुफ्ती आजम मुरादाबाद का अदब करो आप, ढंग के बजाओ मस्जिद के। मुफ्ती आजम मुरादाबाद जैसा आलिम नहीं है पूरे इधर इलाके में, नहीं बल्कि हिंदुस्तान में नायाब आलिम है। ये जामे मस्जिद में तकरीर करें रामनगर की कि मेरे उस्ताद के उस्ताद या मेरे उस्ताद हैं हज़रत मोहम्मद मुफ्ती अय्यूब साहब नहीं में, जो हजारों आलिमों के उस्ताद है। कदीमी मस्जिद वाले भी यही तकरीर करें रामनगर की कि हम सब के उस्तादों के उस्ताद। हाँ, मुफ्ती अय्यूब साहब नहीं में। अच्छा, कभी मुलाकात करना उनसे आप। और ये बरेली में मुफ्ती साले साहब जो मेरे उस्ताद हैं, शेखुल हदीस हैं और मुहद्दिस कबीर हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती साले साहब बरेली में जिंदा बुजुर्ग शख्सियत, पूरा इलाका उनका मुरीद हो जाए मुफ्ती साले साहब। वो क्या है, किसी से वो मुरीद करने की फिक्र में नहीं रहते, वो नेक आदमी।
मैं गया था, शादी सुनाया था मैंने उनको, तो मुझसे बाद में उन्होंने कहा कि अरे तहसील, उन्होंने मुझसे कहा तहसील तहसील किया करो, तहसील मतलब आसानी करो, आसानी, थोड़ा सख्ती नहीं करना चाहिए जमाने में। मतलब हुजूर का फरमान है यस्सरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, लोगों के ऊपर तंगी पैदा न करो, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। समझ में आई बात? तो सहाबा किराम के बारे में आपने पूछा, किताब का मैं एक सहाबी की शान में 2 शेर सुनाता हूँ, फिर खत्म करता हूँ, फिर मैं आपके लड़के का इंतजाम करवाता। ठीक है। हजरत सैयद हसन मियां साहब नदवी मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, जिनके मुरीद आपके हल्द्वानी में भी हैं, सैयद हसन मियां साहब नदवी मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। वो कहते हैं एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नज़ा है, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नज़ा है, सिद्दीक़ उमर उस्मान, सिद्दीक़ उमर उस्मान, करार का क्या कहिए, सिद्दीक़ उमर उस्मान, करार का क्या कहिए, वो गाल के जिसने एक तारीख बनाई है, वो गाल के जिसने एक तारीख बनाई है, एक तारीख बनाई है, उस गाल का क्या कहिए, उसे यार का क्या कहिए, उस गाल का क्या कहिए, उसे यार का क्या कहिए। देखो आपका मिजाज अच्छा लगा सहाबा किराम के बारे में, क्योंकि सहाबा किराम और अहले बैत का दामन नहीं छोड़ना है। अहले बैत का मर्तबा तो अलग अफजल आला तरीन है, लेकिन सहाबा किराम नहीं तो अहले बैत को माना है, दोनों के मर्तबे का जिक्र हदीस में है, इसलिए हमें दोनों को लेकर चलना है, सहाबा किराम को, अहले बैत को, किसी की शान में गुस्ताखी ना हो सहाबी की शान में। आजकल जो एक सिलसिला चल गया अजीब तरह का सिलसिला, सहाबा की शान में गुस्ताखी करने। अरे भाई किसी एक सहाबी को अगर नहीं मानना वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ऐसे अलल ऐलान गुस्ताखी ना करो। जैसे बरेली वाले हजरत अली करमवल्लाहुल करीम के वालिद को मुसलमान नहीं मानते बरेली वाले, ये मुफ्ती शहजाद आलम है, अम्माद रज़ा मुरादाबादी है, मुफ्ती जुल्फ़िकार काशीपुरी है, और मुफ्ती जुल्फ़िकार काशीपुरी नहीं, कासिम साहब तो मानते हैं, मुफ्ती कासिम जो अशरफ है वहाँ पर काशीपुर में, वो गालिबन वो तो मुसलमान मानेंगे हजरत अली के वालिद को, लेकिन ये जुल्फ़िकार नहीं मानता। मुफ्ती जुल्फ़िकार अम्माद रज़ा मुरादाबादी उनके वालिद, और भोजपुर में जितने आलिम है ज्यादातर ये मुसलमान नहीं मानते हजरत अली के वालिद को, और भी जामे मुरादाबादी जितने आलिम है वो नहीं मानते, यानी बरेली से इसने टच है ज्यादातर वो मुसलमान नहीं मानते। जो कछोटा से टच आलिम है वो मुसलमान मानते हैं हजरत अली के वालिद को, और जिनसे फतावा फाजा हुसाम अल-हरमैन लाए थे फाजिल बरेलवी अल्लामा शाह ज़ैनी वाला मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मुसलमान मानते थे। अब ये क्या है, एक फतवा उनको बताते हैं कि देखो फतावा हुसाम अल-हरमैन है देवबंद वालों के खिलाफ, तो उनका जो इनका तुम फतवा बता रहा हो अल्लामा शाह ज़ैनी वाला मक्की, वो तो हजरत अली के बाद को मुसलमान मानते, तो एक फतवा पे तुम मानो, एक तो मान ही नहीं गए, यानी अपने मतलब की बात तुमने मान ली, जो तुम्हारा मतलब की नहीं थी उसे नहीं मानी, यानी हजरत अली के बाद को तो मुसलमान नहीं मानते। क्या तमाशेबाजी है, क्या ख्याल है? अरे ये क्या मालूम, ये जने को अपना मतलब हल करना तो कब्र में शैतान आता है, फाजिल बरेलवी ने लिखा है, कमजोर रिवाज से साबित कर दिया, जब इन्होंने जिस चीज को लिखा उसे कमजोर रिवाज से साबित कर दिया, और हजरत अली के वालिद को मुसलमान नहीं मानते, फाजिल बरेलवी भी नहीं मानते, उनके खानदान वाले भी नहीं मानते, ना उनके मानने वाले मानते। ये जितने भी अजहरी हैं जो आजकल नए नए पढ़ के आए हैं, जिनके नाम मैं बताऊं, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब से पूछ लो रामपुरी से, वो भी मुसलमान नहीं मानेंगे, और जितने भी हैं मुरादाबाद में आलिम, आपको नाम बताना मुश्किल होगा, ये संबल में अजमलूम है, खलूम है, ये भी मुसलमान नहीं मानेंगे। कहना भाई जब तुम उन्हें मुसलमान नहीं मान रहे तो तुम्हें हम काय को माने, फिर चलो यहाँ से जाओ, निकलो बाहर। हैं आप तो मानते हो ना हजरत अली के वालिद को मुसलमान मानते हो ना आप तो? बेशक वो लड़के को भी यही कहना, और ऐसी शख्स को ढूंढो
जो बस 3 बातें देख लो, हजरत अली की वाइफ को मुसलमान मानते हो नहीं, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते हो कि नहीं, इमाम काबा मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान मानते हो कि नहीं, देवबंद बरेली सबको मुसलमान मानते हो कि नहीं। जब के हाँ मानते तो फिर उसको रखो अपने पास, बस। ये तफर्रुक़ नहीं डालना चाहिए कुरान में, भला रमजान शरीफ में कोई, रमजान शरीफ में है कोई जगह या नहीं? वो रमजान शरीफ में करवा देंगे, मैं करवा दूंगा रमजान शरीफ। जब मैं तरावी पढ़ाया था ये कोटा में, जी जी, मेरी जगह करवा दूंगा। वो मैं घर में पढ़ा, तो बहुत बड़ा घर है। अच्छा, जनाब अब्दुल वहीद साहब का घर है, मैंने उसमें तरावी पढ़ाया था, तो वो वहीं पर करवा दूंगा मैं। नजराना शुक्राना सब हो जाएगा। अभी हमने 30,000 का इंतजाम किया था मैंने, जबकि घर में पढ़ा था उसके बावजूद 30,000 था। 20,000 21,000 उसे दिया एक इमाम को, 5,000 वो तो फिर लड़के को मिल जाएगा आपके पूरे 50,000 इंशाल्लाह। ये जो अभी झारखंड में 2 मार्च को हुआ था मुसाबिका ऑल इंडिया हिफ्ज़ कुरान, हाँ हाँ, तो 167 कारी लोग थे, तो 167 कारी लोगों में दूसरे नंबर पे बेटा है अपना। दूसरे नंबर पे जी। बहुत जबरदस्त वीडियो मैंने आपके पे डाली है वो। चलो मैं भी देखता हूँ, उसका इंतजाम करवाता हूँ मैं इंशाल्लाह। तो मैं नंबर दे दूंगा बेटे को, वो आपसे बात कर लेंगे। हाँ मेरा नंबर दे देना इंशाल्लाह। और वो इनके चुंगल में न फंसे, जरूर बता देना। ना वो तो इनसे बचे ही रहते हैं, मगर मदरसों में तो उन्हीं के पढ़ना ही क्या करें। वो कहीं भी पढ़ाओ। कारी रईस साहब लखनऊ, वो क्या नाम मोहल्ला है, जामिअतुल खदरा में हाँ, जामिअतुल कुर्रा, वो कारी यूसुफ है वहाँ पर, मुलाका यूसुफ, वो भी जामिया घर के ही वो कारी रईस साहब हैं खदरा में, जामिअतुल मुस्तफा मदरसा। अच्छा, एक जामिअतुल कुर्रा अलग है, एक जामिअतुल कुर्रा अलग है, वो कारी रईस साहब का अलग है। जामिअतुल कुर्रा के मदरसे के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ आपको नाम है खाली। वो हजरत कारी यूसुफ साहब बड़े कारी हैं, वहीं पर पढ़ाते हैं वो। जी। और उसी में और भी इधर उधर के हैं। एक हमारे मुरीद हैं यहाँ रामनगर में भी बहुत सारे हैं जी। मुजाहिद मिल्लत जनाब हाजी इकराम साहब रामनगर का आपको नंबर दे दूंगा, उनसे आप बात करना। अच्छा। मुजाहिद मिल्लत हैं, जोर के बड़े जबरदस्त काम कर रहे हैं, मुहर्रिक फाल हैं। हजरत हाजी इकराम साहब टांडा रामनगर के। और एक बरेली के कल मेरे पास फोन आया था, बहुत खुश हुए, कह रहे साहब दिली खुशी हुई आपसे मिलके सुन के। उनका नाम है मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद अहले शेदाए पंजतन, हजरत अजीम साहब हैं। अजीम साहब हैं वो अब बिल्कुल मीडियम हो गए, जैसे अपनी जैसे मिजाज हो गए ना, बरेली ने देवबंदी सबको मुसलमान मानना। जी। अजीम साहब का कल ही फोन आया था बरेली से, वो कह रहे मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था, तो इन लोगों ने नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ाई, जिनके पास गए थे। अरे वो कह दिया तुम्हारी अम्मा कौन से अकीदे की थी, देवबंदन थी या बरेलवन थी, अहले हदीस, मतलब ये अहले हदीस थी, कौन सी थी, मतलब ये था। अब औरतों में भी ये मसले हल लगे क्या, कि देवबंदन है कि बरेलवन है कि अहले हदीस है कि क्या है क्या नहीं। इसका मतलब 1 साल की बच्ची भी मर जाएगी तो ये लोग पूछेंगे किसकी लड़की थी, किसकी बच्ची थी। वो 1 साल की दूध पीती बच्ची, बता दूध पीती बच्ची का क्या अकीदा पूछना यार, बताओ वो क्या जाने बेचारी, उसकी भी नमाज जनाजा नहीं पढ़े लोग। अच्छा, कह देते नहीं देवबंदी की है तो नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, इनसे आप पूछ लेना कि साहब दूध पीती बच्ची अगर नमाज में शरीक हो जाए तो हम कि किसकी थी, मगर साहब देवबंदी की, अरे नहीं मत पढ़ना नमाज, अस्तगफुरुल्लाह, बता इतनी सी छोटी सी बच्ची का क्या कसूर है। कहेंगे नहीं अगर उनके साथ जाओगे तो ये तो खुद का कसूर है, बेटी का क्या कसूर है। नहीं आप पूछ लेना, मेरी बात पूछ लेना, मना कर देंगे नहीं उसकी जनाजा भी नहीं पढ़ सकता, छोटी सी बच्ची है, दूध पीती बच्ची बेचारी, वो क्या जाने यार क्या देवबंदी। ऐसे ही लोग फतवे लगाते हैं, अस्तगफुरुल्लाह बिन। खैर आप इनसे राब्ता करना, मैं नंबर दूंगा हाजी इकराम साहब से। और हज़रत ख्वाजा गईना अजमेरी रहमतुल्लाह से बड़ा का कोई आला हज़रत को बताया तो वहीं क्यों इसका गिरबान पकड़ लो, बस गिरबान। बेशक। क्योंकि अब ये छोड़ना नहीं है कि अदालत कचहरी हो कुछ भी हो, जी। अदालत कचहरी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना जो ख्वाजा गईना से बड़ा इनको मनवा रहा है। नहीं ख्वाजा गईना से कौन बड़ा है? ये तो बस जबान से कहते नहीं, हम उन्हें बड़ा मानते। क्या बड़ा मानते हो तुम? उनके नाम के डंके तो बजाते नहीं हर जगह, न उनके मुरीदों के डंके बजाते, कैसा बड़ा मानते हो? वहाबी हो तुम लोग, तकरीर आती है इधर काट जाते। अरे वहाबी की तरह ये भी वहाबी, जैसे ये भी वहाबी है, डबल दूसरे नंबर के वहाबी है। तो ये तो बस कहते हैं कि हम मानते, क्या मानते? वो कोटा में बोर्ड लगा रखा फैजान रजा के नाम से, उसमें गरीब नवाज का नाम भी नहीं है। दाऊद इस्लामी वाले जितने मदरसे खोलते हैं गरीब नवाज का नाम भी नहीं रखते, न इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम पे रखते, न इमाम बाकर के, न इमाम जाफर के, बस चंदा घसीटने जाते हैं, आला हज़रत के नाम पे चंदा घसीटने लोग हैं। देखो देवबंद वाले तो ख्वाजा गईना को मानते हैं,
जी उलमाए देवबंद, वो आप देखना उनका सिलसिला भी है, चिश्तिया सिलसिला है। वो लोग तो गरीब नवाज को मानते हैं, वो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। आप देवबंद वालों से वो कहोगे कि हाँ इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह सकते तो मना नहीं करेंगे, उनके सामने आप कहोगे तो मना नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, आप देवबंद वालों के सामने कहते ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मना नहीं करेंगे, लेकिन बरेली वालों के सामने कहोगे ना एकदम मना कर देगा, अलैहिस्सलाम क्यों कहा तूने। जी ये है, ये इसमें कट्टरपन होता है इन लोगों का। आप बस ये कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कहो तो यानी मतलब ये होता है रज़ियल्लाहु अन्हु कहने का कि हम जैसे आला हज़रत को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इतना ही कहो इमाम हुसैन को रज़ियल्लाहु अन्हु, ताकि लोगों की नजर में उनका मर्तबा बड़ा मालूम ना हो। अगर इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहोगे तो लोग समझेंगे ना ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बड़े, अलैहिस्सलाम कहा जा रहा है। बेशक अलैहिस्सलाम को मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इमाम बुखारी ने कहा है, इमाम बुखारी ने लिखा है, बुखारी शरीफ पूरी दुनिया पढ़ती है, उसमें लिखा है। अब ये लोग मिटा दें, इनकी मर्जी है। बड़े पीर साहब ने लिखा है, शेख अब्दुल हक साहब, शेख अब्दुल अजीज साहब, बड़े बड़े वलियों ने अलैहिस्सलाम लिखा है। जी 200 किताबें अगर अजमेर शरीफ आ जाए, टांडा वाला जिसका मेरे पास फोन आया था परसों, ये हाफिज टांडा का है, रामनगर का, ही आ जाए 200 किताबों से हवाले न दे दूं तो 200 किताबों से लिया अपने पूरे अपने जितने भी उसके हवारीन है सबको लिया वहाँ पर अजमेर शरीफ में। पूरा किराया मेरा 2 लाख रुपए तक मैं इंतजाम करूंगा, अगर साबित न कर दूं कि अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन को कह सकते हैं कि नहीं। 200 किताबों से कम पेश 200 बता रहा हूँ। 200 से अगर कम लाया तो फिर 200 से कम बताएं तो फिर कहना, तब जमा कर लूंगा 200 अलग अलग वलियों की, समझ लो। आपकी और उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैं हूँ कट्टर, अलकट्टर अलकट्टर हूँ, कट्टर 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 हूँ, कट्टर 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 न कट्टर तो कट्टर से कट्टर तुम, कट्टर तो कट्टर ना एक्टरो एक्टरान तक्टरो तक्टरान एक्टरो तक्टरो तक्टरान एक्टरन तक्टरो तक्टरान तक्टरो एक्टरो नेक्टरो लम एक्टर लम एक्टर लम एक्टर लम तक्टर लम तक्टर लम एक्टर ना। मैं तो वो कट्टर हूँ, सुन्नी हूँ। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई मुझे। आपके बेटे का नंबर भेजना और मैं आपसे राब्ता करके उसे बेफिक्र कर देना। मुझे ऐसी जरूरत है जो मीडियम दर्जे के हों। ये कह रहे थे आपको कहीं हो जगह अच्छी तो वहाँ लगवा देना। नहीं, मैं इंशाल्लाह 12,000 तो हम खुद ही कर देंगे, 12,000 रुपया अभी स्टार्टिंग में। वो अपने उससे आजाद छोड़ देंगे। आजाद छोड़ने का मतलब ये कि वो ट्यूशन भी पढ़ा सकता है 12,000 के अलावा, यानी ट्यूशन का भी इंतजाम मैं करवा दूंगा कोटा में। ये तो ऐसी जरूरत थी ना ऐसे हाफिज की जो आप बता रहा हूँ, उससे कहना कहीं जाए नहीं, मैं अभी कुछ ही दिन में उसका इंतजाम करवा देता हूँ, 2-4 दिन 5 दिन। ऐसे बच्चे ने इतने कारी लोगों में, और सुनो तनख्वाह में इकट्ठी उसको दे दूंगा रमजान शरीफ में, जैसे 12,000 के हिसाब से मैं अभी से फिक्स कर दूंगा। तो खाने पीने का इंतजाम मैं करवा दूंगा कोटा में मरीजों की यहाँ। दूसरा ये है कि वो ट्यूशन का कह देगा जितनी ट्यूशन चाह पढ़ाओ वो भी तुम्हारा, ये 12,000 हमारी तरफ से। एक टाइम बस पढ़ाओ, एक टाइम 2 टाइम तबलीग करो, इस्लाम की तबलीग करो, मतलब नमाजी बनाओ, लोगों को सिखाओ जगह जगह जगह। यानी आधा जो भी मिल जाए वो अलग रखो, जो पैसा मिल जाए एक्स्ट्रा वो अलग रखो, पढ़ाने का यानी ट्यूशन पढ़ाने का वो अलग रखो, वो भी हो जाएगा उसका। ठीक है, मदरसा मतलब बड़े बच्चे पढ़ाने वाले, हिफ्ज वाले। हाँ वो भी, वो तो अपन खुद का ही पर्सनली करेंगे ना, पढ़ाने वाला पर्सनल। जी ये लड़का जाके स्टार्टिंग कर देगा, मैं खुद इंतजाम करवा दूंगा, धीरे धीरे करके बच्चे आने लगेंगे। नहीं अपने ही पर्सनल होगा ना जब भी काम चलेगा, धीरे धीरे अपन स्टार्ट कर लेंगे वो तो वहाँ पर है। ये तो आपका बच्चा रहेगा ना। अब मैं अभी आज या कल तक मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, और लड़के से मेरी बात करा देना। ठीक है, ठीक। अभी तो मदरसे में होंगे 12 बजे। हाँ वो अभी मदरसे में, जो उससे कहना अब कहीं जाए नहीं, वो इंशाल्लाह कोटा में इंशाल्लाह स्टार्टिंग करवा देंगे। ठीक है, ठीक इंशाल्लाह। मैं कल और बात कर लूंगा आपसे। जी इसको डलवा दूं चैनल पे? जी हाँ ठीक है। क्या नाम है? इरशाद साहब। ठीक, मेरा हाफिज इरशाद हुसैन नाम है। हाफिज इरशाद। ठीक है साहब, ठीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।